السلام علیکم میرے چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں، اور جو بھی میرے چینل پر نیو ہے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے۔ شکریہ۔ آئیے آج کی ایک اور پراسرار خوفناک کہانی سنتے ہیں۔ اس کہانی کا نام خالی فلیٹ ہے، جس میں مین کردار ماہین اور خرم کا ہے۔ ماہین اور خرم یہ کون ہے آپ کو اس کہانی میں پتہ چلے گا، تو بنا وقت ضائع کیے ماہین اور خرم کی ایک خوفناک داستان سنتے ہیں۔ جواد اپنی امی اور بہن کو لے کر ایک نیو اپارٹمنٹ میں شفٹ ہو گیا تھا، اور اس کی چھوٹی بہن ماہین وہ یونیورسٹی گوئنگ گرل تھی، لہٰذا بہت اچھی زندگی گزر رہی تھی۔ جواد ایک اچھی پوسٹ پر تھا، ان کو گھر شفٹ کرنا تھا، حصے کا مکان تھا۔ آپس میں چچا تاؤں میں حصہ پتی ہو گئی تھی، اور جو رقم جواد کو ملی اس نے وہ حصے کی رقم اور اپنی سیونگ رقم ملا کر ایک بہت بہترین فلیٹ خرید لیا تھا۔ یہ فلیٹ 8 کمروں پر مشتمل تھا۔ اتنا بڑا فلیٹ کیوں لیا بیٹا تم نے؟ اتنے سارے کمروں کا ہم کیا کریں گے؟ مما سمجھا کریں، کیا میری شادی نہیں کرنی؟ میری بھی تو فیملی ہوگی، تو پھر کیا میں اور گھر خریدتا پھروں گا؟ آج مناسب پیسے میرے پاس تھے، یہ فلیٹ مل گیا۔ مہنگائی جس قدر ہو رہی ہے اس نے تو کمر ہی توڑ کر رکھ دی ہے، کب کون سا بھاؤ کدھر گر جائے کیا معلوم، اور مکان خریدنے کی پھر کہاں حیثیت ہے۔ ہاں بیٹا یہ تو ٹھیک ہے، لیکن 8 کمرے، اس سے اچھا تو تم پوری ایک بلڈنگ ہی لے لیتے۔ مما فلیٹ سیف رہتا ہے، چوری چکاری کا خطرہ بھی کم ہوتا ہے، اور پھر میں جاب پر چلا جاتا ہوں، ماہین پڑھنے چلی جاتی ہے، اور آپ دن بھر اکیلی ہوتی ہیں۔ اور ویسے بھی مما 8 کمرے تو برائے نام ہے، اوپر نیچے کا پورشن ہے، اور بیچ میں سے ایک سیڑھی اوپر کمرے کی طرف جا رہی ہے۔ بہت خوبصورت فلیٹ تھا یہ، جو جواد نے خریدا تھا۔ کسی ماہر نے اس فلیٹ کو تیار کیا تھا، 1 اور 2 پورشن خرید کر اور بیچ میں سے رستہ دے کر حیرت انگیز طور پر ایک گھر بنا رکھا تھا۔ یہ فلیٹس آبادی سے کچھ ہٹ کر تھے، اس لیے یہاں آنا جانا یا ٹریفک کا شور بہت کم ہوتا تھا۔ آبادی سے کچھ ہی فاصلے پر ایک سنسان سڑک اور اس کے ساتھ ہی لائن سے یہ اپارٹمنٹ بنے ہوئے تھے، جس کے اندر اکا دکا ہی آبادی تھی۔ ماہین تم یونیورسٹی سے بیٹا ٹائم سے گھر آ جایا کرو، اور کوئی ضرورت نہیں ہے دوستوں کے ساتھ یہاں وہاں گھومنے پھرنے کی۔ سردیاں لگ گئی ہیں، موسم جلدی بدل گیا ہے، اور رات بہت جلدی ہونے لگتی ہے، اور میں اکیلی گھر میں پریشان ہو جاتی ہوں۔ میری تو اڑوس پڑوس میں کسی سے دوستی بھی نہیں ہوئی ہے، ہمارا تو پورا اپارٹمنٹ ہی خالی ہے، بس کونے میں نیچے ایک ہی فلور ادھر آباد ہوا ہے، یا ہمارا۔ جی امی جان آپ بالکل ٹھیک کہتی ہیں، لیکن بھائی جان کو نہ جانے کیا سوچی تھی کہ اتنی دور اور اتنی سنسان جگہ پر یہ اپارٹمنٹ لے لیا۔ بیٹا ایسا تو نہیں کہتے، کیا کرتے بیٹا؟ یہاں گھر نہ لیتے تو کہاں جاتے؟ ہمارے پاس جو رقم ہے تو وہ تو کراچی شہر کے اندر تو ہم گھر لے ہی نہیں سکتے۔ اب کراچی سے ہٹ کر یہ جو جگہ آباد ہونا شروع ہوئی ہے، ہو سکتا ہے آنے والے کچھ ٹائم بعد یہاں فل آبادی ہو جائے۔ امی جان بہت دور پڑتی ہے مجھے یونیورسٹی یہاں سے، میں سب جانتی ہوں، لیکن بھائی نے تمہیں چھوٹی سی کار تو لے رکھی ہے نا، اس سے تو تمہیں پریشانی ہونی ہی نہیں چاہیے۔ خیر جو بھی ہو ہمارا وقت تو نکل ہی جائے گا، لیکن امی یہاں عجیب سا ایک خوف محسوس ہوتا ہے۔ شام ڈھلتے ہی ایسا لگتا ہے جیسے کچھ کالے سائے زمین پر پھرتے ہوں، اور رات گہری ہوتی جاتی ہے تو آپ دیکھتی ہیں نا کہ یہاں کس قدر کتے بھونکتے ہیں، اور کتنا ڈر لگنے لگتا ہے۔ امی ایسا لگتا ہے ہم تو کسی گاؤں میں رہ رہے ہیں۔ بس یہی سمجھ لو ماہین، اب وقت تو گزارنا ہے نا۔ سردیوں کی آمد ہو گئی تھی، اور موسم میں بھی ہلکی ہلکی سی خنکی چھانے لگی تھی۔ کراچی سے دور ہونے کے باعث یہاں پر ٹھنڈ زیادہ محسوس ہو رہی تھی۔ امی
यूनिवर्सिटी जाओ तो वहाँ गर्मी लगती है, शाम को यहाँ पर सर्दी लगने लगती है, ऐसा लगता है कि किसी मानसून के मौसम में रह रहे हैं। अच्छा चलो खैर है, मैंने तुम्हारे लिए खाना तैयार कर दिया है, जवाद भी आने वाला होगा। चलो शाबाश, अब टेबल लगा दो, 10-15 मिनट में भाई भी आता होगा। मैं ज़रा मुँह हाथ धो के नमाज मगरिब अदा करने जा रही हूँ, ठीक है ना? जी अम्मी जान आप चली जाइए, कोई मसले वाली बात नहीं है। अम्मी जान नमाज पढ़ने के लिए चली गई थी। मैं माहिन थोड़ी देर के लिए विंडो पर जाकर खड़ी हो गई। मैंने देखा कुछ ही फासले पर एक नौजवान लड़का ब्लैक हुडी पहने हाथ में शॉपर लिए सीटी बजाया जा रहा था। अचानक वो रुका और उसने पीछे पलटकर किसी को देखा और फिर बहुत तेज तेज कदमों से हमारे फ्लैट के अंदर दाखिल हो गया। मैंने देखा जैसे ही वो अपार्टमेंट के अंदर मेन डोर से दाखिल हुआ तो सामने सीढ़ियाँ थीं, वो मुझे नज़र ना आई, लेकिन मैं यूँ हैरान हो गई कि हमारे अपार्टमेंट में क्या कोई और फैमिली आ गई है। मैं बहुत खुश हो गई थी और मैं अम्मी के नमाज अदा करने का इंतज़ार करने लगी। और अब मैं भी खाने पीने का सामान डाइनिंग टेबल पर रख चुकी थी। भाई भी थोड़ी ही देर में आ गए थे और हम बैठे हुए बातें कर रहे थे। मैंने जवाद भाई को बताया कि मैंने यहाँ पर एक लड़के को ऊपर चढ़ते देखा है जो कि ब्लैक हुडी में था। वो मुझे साफ नज़र आ रहा था। अम्मी ज़रा माहिन को समझाइए, इधर उधर लोगों पर नज़र ना रखा करे, हमें सिर्फ अपने घर की सोचनी चाहिए। वैसे भी ये माहौल यहाँ वहाँ नज़र रखने का नहीं है। और देखिए किसी भी एरे गैरे के लिए दरवाज़ा ना खोलिया करें, क्योंकि कब कहाँ क्या वाक़या हो जाए। दहशतगर्द इतनी आम है, चोर उचक्के सुनसान घरों को तो ढूंढते फिरते हैं। पता है ना अभी कुछ दिनों पहले क्या वाक़या हुआ था कि एक अपार्टमेंट में एक औरत की गर्दन काट दी थी और बहुत दिनों बाद उसका पता चला जब कोई रिश्तेदार उसके घर आया। अम्मी ज़रा ख्याल करें, मैं भी शाम में आता हूँ। और माहिन अब तो तुमने ये बात मुझसे कह दी, आइंदा ना कहना, मैं इन बातों को पसंद नहीं करता। माहिन झेप रही थी। भाई मैं तो बस यूं ही, क्या ज़रूरत है, यहाँ भले पूरा फ्लैट भर जाए, हमें किसी से क्या लेना। मैं क्या तुम्हें यहाँ पर दोस्ती करवाने के लिए लाया हूँ। अम्मी इसकी यूनिवर्सिटी ख़त्म हो तो हम इसकी शादी करेंगे। जवाद को अचानक क्या हो गया था कि वो भपर गया था और अम्मी आज जवाद के इस अजीब से रवैये से डर गई थीं। वो माहिन को आंखों ही आंखों में घूर रही थीं और माहिन बेचारी आंखों में आंसू भरे टेबल से उठकर अपने कमरे की जानिब चली गई थी। जवाद बेटा क्या बात है, क्या परेशानी है? अम्मी माहिन बड़ी हो गई है और मैं अपनी बहन के मुंह से किसी गैर आदमी के बारे में ऐसी बातें नहीं सुन सकता। बेटा उसने किसी की तारीफ तो नहीं की, सिर्फ तुम्हें बताया है। हो सकता है अम्मी वो बता रही हो, लेकिन मैं नहीं चाहता कि वो मुझसे किसी भी गैर मर्द की बात करे। यह कहकर जवाद ने भी आज खाना छोड़ दिया था। सुबह नाश्ते की टेबल पर भी जवाद और माहिन आपस में एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। अम्मी को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी कि आज उसके बेटे और बेटी एक दूसरे से बिला वजह नाराज़ होकर बैठ गए हैं। जाते जाते फ्लैट के चौकीदार रहमू से जवाद ने कह दिया था कि आने जाने वाले पर नज़र रखा करो। क्या कोई नए लोग यहाँ पर आए हैं? अरे नहीं जी, कोई भी तो नहीं आया। ले देकर 3 ही तो फ्लैट अभी आबाद हुए हैं, 2 आपके हैं और एक नीचे वाले जो अदनान सर हैं उनका है। क्यों, आपने क्या किसी को देखा है? तब जाकर जवाद ने रात वाली बात बताई कि माहिन ने रात को ब्लैक हुडी में ऊपर सीढ़ियों की जानिब किसी को जाते हुए देखा है। ज़रा देखकर आना पूरे फ्लैट को ऊपर तक। ये फ्लैट 11 माला पर मुश्तमिल था। जी ज़रूर। और देखो आजकल वारदातें बहुत हो गई हैं। हम लोगों की एंट्री होते ही दरवाजे पर ताला मार दिया करो ताकि आने और जाने वाले दोनों का तुम्हें पता रहे। यहाँ पर तुम्हें पैसे किस बात के मिलते हैं? ये सोसाइटी अभी नई नई आबाद हो रही है और अगर तुम इतनी लापरवाही करोगे तो तुम ही सबसे पहले धरे जाओगे, याद रखना। क्योंकि मैंने सुना है वारदातों में ऐसी जगहों पर सबसे ज़्यादा और गहरा हाथ चौकीदारों का ही होता है। चौकीदार अपनी नज़रें यहाँ वहाँ कर रहा था और जवाद उसकी आंखों में
دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن میں ایسا ویسا نہیں۔ آپ آئندہ مجھ سے ایسی بات نہ کریے گا، اور میں خیال کروں گا کہ آئندہ یہاں پر کوئی غیر آدمی داخل نہ ہو۔ کیا مطلب، کیا کوئی یہاں آیا تھا؟ ارے میں آپ کی بات کا جواب دے رہا ہوں۔ میں بنا شناخت کی اب کسی کو بھی یہاں اندر آنے نہیں دوں گا۔ بے فکر ہو جائیے اور اپنا خیال رکھیے، دھیان سے جائیے، شام کو ملاقات ہوتی ہے۔ آج واپسی میں ماہین نے جب کار فلیٹ کے اندر مین ڈور سے کراس کی تو اس نے دیکھا وہی کالی ہوڈی کے اندر وہ لڑکا سیڑھی کے اوپر چڑھ چکا تھا۔ ماہین نے جلدی سے کار سائیڈ میں کی اور فوراً سے کار سے نکلتے ہوئے اس لڑکے کے پیچھے جانے لگی، دبے دبے قدموں سے۔ وہ لڑکا بے دھیانی میں سیڑھیاں کراس کرتے ہوئے جا رہا تھا۔ اب تو سیکنڈ فلور بھی آ گیا تھا جو کہ ماہین کا تھا، اس لیے وہ لفٹ یوز ہی نہیں کرتے تھے، کیونکہ سیڑھی کے ساتھ ہی سیکنڈ فلور ماہین لوگوں کا تھا۔ ماہین نے سوچا کیوں نہ اس کا پیچھا کیا جائے تاکہ سچائی پتہ چلے کہ اس فلیٹ میں واقعی کچھ لوگ آ گئے ہیں۔ ہائے ہیلو بھی ہو جائے گی۔ ماہین تیسری سیڑھی بھی کراس کر گئی تھی اور اس کے بعد فورتھ فلور آ گیا تھا۔ فورتھ فلور جیسے ہی آیا تو کچھ ہی فاصلے پر دروازہ نمبر 350 اس لڑکے نے وہاں جا کر اپنے قدم روک دیے اور ہلکی سی گردن موو کی اور دروازہ کھولتے ہوئے سیدھا اندر چلا گیا۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ اس لڑکے نے دروازہ بند ہی نہ کیا تھا۔ آج ماہین بہت حیران ہو رہی تھی کہ 350 فلیٹ نمبر پر واقعی میں کوئی لوگ آ گئے ہیں۔ میں کیوں نہ آج اپنی امی کو بتاؤں گی، مزہ آ جائے گا۔ اور جواد بھائی کا سوچتے ہی ماہین نے جھرجھری لی اور آگے بڑھنے لگی۔ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ ماہین نے آہستہ آہستہ قدموں سے چلتے ہوئے دروازے کی جانب بڑھ کر دروازہ مزید کھول دیا تو اندر فل فرنیچر تھا اور وہ لڑکا سائیڈ میں کچن میں کام کر رہا تھا۔ ماہین نے دروازہ نوک کیا، کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ اس لڑکے نے جیسے ہی گردن گھمائی تو وہ اسے دیکھتے ہی رہ گئی تھی۔ کتنا ہینڈسم ہے، دل میں سوچا۔ جی فرمائیے کیا کام ہے؟ ارے کچھ نہیں، میں تو بس ایسے ہی گزر رہی تھی تو سوچا آپ کو دیکھا تو میں ادھر آ گئی۔ اس نے تمام تفصیل بتائی۔ وہ لڑکا نیچے منہ کر کر مسکرانے لگا۔ میں تو یہاں پچھلے 3 سال سے رہ رہا ہوں۔ 3 سال سے؟ اچھا۔ باتیں کرتے کرتے اس لڑکے نے چائے کی آفر کر دی تھی اور ماہین بھی صوفہ پر دراز ہو گئی۔ ٹھیک ہے چائے پلا دے، چائے تو میری بہت زیادہ کمزوری ہے۔ ہاں میں چائے بہت اچھی بناتا ہوں۔ آپ کے گھر میں کیا کوئی اور نہیں ہے؟ لیکن سب باہر ملک گئے ہوئے ہیں۔ تو پھر آپ اکیلے یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ بس کچھ ہی ٹائم میں میری فیملی آ جائے گی اور پھر میں اکیلا کہاں؟ اس نے بھی فرفر جواب دیا۔ کیا کرتے ہیں آپ؟ میں نے کیا کرنا ہے؟ کچھ نہیں، ابا جی کا بزنس ہے وہی سنبھالتا ہوں۔ اچھا ابو جی کا بزنس ہے، ٹھیک ہے۔ اس نے چائے پی اور مزے سے نیچے اتر آئی۔ کیا آپ ہمارے گھر آئیں گے؟ میں اصل میں کسی سے ملنا پسند نہیں کرتا، لیکن ہاں آپ آ سکتی ہیں جب بھی آپ کا دل ہو۔ یہ کہہ کر ماہین کو دیکھتے ہوئے اس نے دروازہ بند کر دیا تھا۔ ماہین عجیب سی سوچوں میں گم فوراً سے نیچے اتر آئی۔ یہ کتنا بدتمیز ہے، مجھے باہر بھی نہیں نکلنے دیا اور دھپ سے دروازہ بند کر دیا۔ امی جو بہت پریشان ہو رہی تھیں دروازہ کھولتے ہی ماہین کو ڈانٹنے لگیں۔ کہاں چلی گئی تھی؟ تمہاری کار تو کب سے میں کھڑکی سے دیکھ رہی تھی، تم کہاں چلی گئی تھی؟ وہ اصل میں امی میں یوں ہی آج اوپر تک چلی گئی تھی۔ تم خالی فلیٹ میں اوپر تک چلی گئی تھی؟ امی دل چاہ رہا تھا ماہین بات چھپا گئی تھی کیونکہ وہ مزید اس سے ملنا چاہ رہی تھی، کیونکہ وہ لڑکا بہت ہی زیادہ ہینڈسم تھا۔ اس نے سوچا کیوں نہ اس سے دوستی کر لی جائے۔ یونیورسٹی پڑھتی تھی اس لیے اس کا ذہن بہت ہی زیادہ آزاد تھا۔ امی جان جلدی سے کھانا لگا دیجیے۔ ارے تھوڑا صبر کرو، میں نے تمہارے لیے جوس بنا رکھا ہے، بھائی آنے والے ہیں ساتھ ہی کھانا کھائیں گے۔
आज मौसम में हल्की हल्की सी फुहार पड़ रही थी। बाहर का माहौल बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। ठंडी हवाएं चल रही थीं। माहीन ने झुरझुरी लेते हुए आज खिड़की के पट खोल दिए थे और ठंडी हवा का मज़ा लेने लगी। कितनी खौफनाक जगह लगती है ये, दूर दूर तक न बंदा न बंदे की जात, हद्दे निगाह, गहरा सन्नाटा है। अचानक उसकी नज़र नीचे चौकीदार पर पड़ी, जो कि कुर्सी पर बैठा सो रहा था। उसने देखा कि वो ही ब्लैक हुडी वाला लड़का अंदर आ रहा है। अरे ये जाल तो बंद है, ये कहाँ से आ गया? क्या कर रही हो खिड़की पर माहिन? देख नहीं रही कि हल्की हल्की फुहार हो रही है और कितनी तेज हवाएं चल रही हैं? बंद करो खिड़की, बेवकूफ़ लड़की। जवाद ने माहिन को फिर डांटा। अम्मी, आप भाईजान को समझा लीजिए, जब देखो मुझे डांटते रहते हैं। लगता है इनके ऊपर इनके काम का बोझ कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है। बिला वजह मुझे डांटते रहते हैं। आप इन्हें मना कर दें, वरना अच्छा नहीं होगा। ठीक है बेटा, मैं समझाऊंगी। न जाने क्या परेशानी है जो ये इस कदर बदतमीज़ी करता रहता है। खैर कोई बात नहीं, तुम्हारा भाई शुरू से तो ऐसा नहीं था ना। अम्मी, हफ्ते भर से ऐसे हो गए हैं, लेकिन प्लीज़ आप इसे समझाइए ताकि मेरे भाई मेरे साथ अच्छे से रहें, और मैं अपने प्यारे भाई जवाद को खोना नहीं चाहती। मैं नहीं चाहती कि मैं अपने दिल में इनके लिए नफ़रत पैदा कर लूँ। ये कहकर माहिन अपने कमरे में चली गई थी और उसी लड़के के बारे में सोचते सोचते कब आँख लग गई। सुबह आज वो जल्दी ही बेदार हो गई थी। उसने फैसला कर लिया था कि वो यूनिवर्सिटी जाने से पहले आज उस लड़के से मिलकर जाएगी। नाश्ता करने के बाद उसने सीधा ऊपर का रुख लिया। दरवाज़ा बजा दिया। 10 से 15 मिनट वो वहीं खड़ी रही। ये तो दरवाज़ा ही नहीं खोल रहा। शायद हाँ, लड़के रात भर जागते हैं ना, इसलिए सो रहा होगा। ये कहकर जैसे ही वो वापस मुड़ी, उसने देखा कि वो लड़का सामने से चलता हुआ आ रहा था। उसके चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट थी। क्या हुआ माहिन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसके हाथ में देखा कि उसके हाथ में नाश्ते की थैली थी। अरे, आप नाश्ता लेने गए हुए थे? जी, मुझे कौन नाश्ता पका कर देगा? मुझे तो बाहर से और काफ़ी दूर से जाकर नाश्ता लाना पड़ता है। अच्छा, आप यहाँ कैसे? खैरियत? अरे मैं वो बस यूं ही आपसे मिलने चली आई। यूनिवर्सिटी जा रही हूँ तो सोचा आपसे मिल लूँ। कल रात मैंने आपको देखा, बूंदाबांदी हो रही थी और आप बाहर जा रहे थे। अच्छा, इतना गौर से ना देखा करो और ना ही इतना नोटिस में रखा करो। इतना गौर और नोटिस इंसान के लिए नुकसानदेह होता है। क्या कहना चाह रहे हैं आप मिस्टर? क्या आपका कोई नाम नहीं? जी, फिलहाल तो मेरा कोई नाम नहीं। अच्छा, आप भी जाइए और मुझे भी अंदर जाने दीजिए। उस लड़के ने बड़ी बेबाकी से उसे इग्नोर कर दिया था और माहिन कहीं ना कहीं उसके बारे में अंदर ही अंदर सोच रही थी। उस लड़के ने फिर दोबारा माहिन की जानिब मुड़ के देखा और माहिन तेजी से सीढ़ियां उतरते हुए जा रही थी। अरे बीबी जी, आप ऊपर से कहाँ से आ रही हैं? चौकीदार नीचे सर के तेजी से सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते माहिन को देखकर रुक गया था। अरे बस वो तो मैं यूं ही चली गई थी ऊपर। वो यहाँ फ्लैट नंबर 530 में जो लोग रहते हैं ना, मैं उनके ही बेटे से मिलने गई थी। अच्छा, 530 में? चले, आप जल्दी करिए, देर हो रही है और मुझे भी ऊपर जाना है। आप ऊपर क्यों जा रहे हैं? मियाँ जवाद साहब का हुक्म है कि मैं रोज़ाना फ्लैट को सुबह और रात को चेक किया करूं। मुझे तमाम पोर्शंस देखने होते हैं। और कौन सा फ्लैट नंबर बताया आपने? 530। अच्छा, माहिन जल्दी में थी, इसलिए चौकीदार को हैरानी और तजस्सुस में मुब्तला देख ही ना सकी और फौरन से नीचे उतरकर यूनिवर्सिटी चली गई थी। चौकीदार 530 की तरफ आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ा रहा था। उसने देखा कि दरवाज़ा खुला हुआ है। वो सीधा अंदर चला गया था। अम्मी, चौकीदार कहीं गया हुआ है क्या? आज दिखाई नहीं दे रहा। अरे बेटा, वो मैंने भी उसे सुबह से नहीं देखा है। अम्मी, हाँ,
मैंने उसे सुबह देखा था सीढ़ियां चढ़ते हुए। उसने मुझसे कहा था कि जवाद मियाँ का हुक्म है कि सुबह शाम फ्लैट के पोर्शंस का विजिट करा करो, ऐसा ना हो कोई चोर उचक्का घुस आए, क्योंकि हमारे फ्लैट्स तमाम ही तो खाली पड़े हैं। अच्छा, लेकिन अम्मी मैंने भी जब यूनिवर्सिटी से आई तो उसे देखा नहीं। हो सकता है काम छोड़ गया हो। हाँ, ये भी तो हो सकता है कि काम छोड़ गया हो। ऐसे लोगों का पता भी तो नहीं होता, मेंटेनेंस रिसीव करते हैं और भाग जाते हैं। चलो देखते हैं अम्मी, अगर कल तक नहीं आता तो इंतजामिया से बोलकर दूसरा चौकीदार रखना होगा। 2 दिन गुजर गए थे और वो चौकीदार, अम्मी देखा आपने कैसा है ना वो चौकीदार? मैंने थोड़ी सी क्या सख्ती की, काम ही छोड़कर भाग गया, वरना सारा दिन कुर्सी पर बैठा सिगरेट ही फूंकता रहता था। चलो बेटा खैर है, अम्मी कल नया चौकीदार आ जाएगा, आप परेशान ना हो और दरवाजे सेफली बंद रखा करें। हाँ बेटा तुम ठीक कह रहे हो। जवाद सुबह सुबह आज जल्दी काम के लिए निकल गया था। माहीन का फिर दिल हुआ कि वो ऊपर जाकर उसी लड़के से मिले, वो भी जल्दी नाश्ता खत्म करके। अम्मी आज मुझे भी जल्दी यूनिवर्सिटी पहुंचना है, तमाम दोस्तें बाहर इकट्ठी हो रही हैं और फिर हमें कुछ प्लान करना है। चलो बेटा ठीक है, जल्दी करो फिर। ये कहकर माहीन भी अब अपने फ्लैट से बाहर आ गई थी और ऊपर की जानिब देख रही थी। आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियां दबे दबे कदमों से चढ़ रही थी। जैसे ही वो फ्लोर 4 पर पहुंची, उसने देखा कि वो लड़का बाहर खड़ा हुआ था और सीधे घूरे जा रहा था। माहीन को देखकर वो हल्का सा मुस्कुराया। क्या आप मेरा इंतजार कर रहे थे? कुछ ऐसा ही समझ लो माहीन कि भी तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, लेकिन तुम कल भी नहीं आई, तो क्या आप चाहते थे कि मैं कल आऊं? सॉरी माहीन, परसों सुबह मैंने आपसे कुछ मिसबिहेव कर दिया था। असल में मैं जल्दी में था, रात को मेरी नींद पूरी नहीं हुई थी और फिर मैं नाश्ता करके सो गया था। माहीन के पास बात करते करते वो लड़का अब इंतहाई करीब आ गया था। माहीन एकदम पीछे हुई, वो सीढ़ियों पर गिरते गिरते बची थी कि अचानक उसी लड़के ने माहीन का हाथ पकड़कर थोड़ा आगे किया। अरे ध्यान से खड़ी होइए, नीचे गिर जाएंगी तो क्या होगा? वो असल में मुझे आपसे कोई बात करनी है। वो लड़का अंदर ही अंदर मुस्कुरा दिया। जी जरूर बोलिए, क्या बात है? माहीन एकदम बात गोल कर गई और कहने लगी कि पता है 2 दिन से चौकीदार का पता ही नहीं। जवाद भाई है ना, उन्होंने नया चौकीदार अब इस फ्लैट के लिए अपॉइंट किया है जो कल आ जाएगा। चौकीदार 2 दिन? हाँ, मुझे मिला था, मुझसे कह रहा था कि मैं अब गांव वापस जा रहा हूँ, यहाँ मुझे तनख्वाह अच्छी नहीं मिलती। अच्छा ऐसी बात है, बताऊंगी जवाद भाई को। अरे अपने भाई से कोई बात न करना, वरना वो आपको फिर डांटेगा मेरी वजह से। आपको कैसे पता कि मेरे भाई ने आपकी वजह से मुझे डांटा है? पता तो चल ही जाता है ना, आपका भाई बहुत खड़ूस है और मैंने देखा है कि मैं जब भी उनसे बात करने की कोशिश करूं तो मुझे फौरन इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं। तो क्या मेरे भाई से आपकी मुलाकात हो चुकी है? 1 दफ़ा नहीं, कई दफ़ा हो चुकी है, लेकिन वो मुझे बहुत इग्नोर करते हैं। अरे चले कोई बात नहीं, फिर भी हम एक ही जगह तो रहते हैं। अच्छा मैं अब चल रही हूँ, मुझे देर हो रही है। क्या तुम शाम को यहाँ आ सकती हो? मिलकर बातें करेंगे, हो सकता है हम छत पर चलें। हाँ मैं ज़रूर आ जाऊंगी, लेकिन क्या? अम्मी से क्या बोलूँगी? ये बात भी है। चलो खैर है, फिर कल सुबह मुलाकात होती है। माहीन बेचैनी से सुबह होने का इंतज़ार करने लगी थी। वो अंदर ही अंदर ये सोच बैठी थी कि वो लड़का शायद उसे पसंद करने लगा है, जिसके नाम से वो अब तक वाकिफ भी न थी। रात के शायद 3 बज रहे थे जब उनका दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजा। माहीन, जवाद और उसकी अम्मी तीनों की आंख खुल गई थी। कौन है जो इस वक्त दरवाज़ा बजा रहा है? साहब जी दरवाज़ा खोलें, मैं हूँ, रहमू, आपका चौकीदार। रहमू चौकीदार? लेकिन तुम तो 2 दिन हुए यहाँ से चले गए। दरवाज़ा खोले, मैं आपको सब बताता हूँ। जैसे ही जवाद ने दरवाज़ा खोला तो बाहर रहमू तो क्या उसकी परछाई भी ना थी। यहाँ वहाँ हर तरफ देख लिया, माहीन भी डर गई थी। अम्मी ये कैसा मजाक करा है किसी ने हमारे साथ? पूरी जगह छान मारी थी, नीचे तक
दरवाजे तक हो आया था जवाद। अम्मी कोई भी तो नहीं है, और देखें टाइम, रात के 3:30 बज रहे हैं। अंदर आ जाओ, ऐसा ना हो किसी ने हमारे साथ मजाक किया हो और फिर से कोई वारदात हो जाए। जवाद खौफजदा हो गया था और उसने दरवाज़ा आकर अंदर से लॉक कर दिया था। अब तो हर दूसरे दिन रहमू उनका दरवाज़ा बजाने लगा था, लेकिन दरवाज़ा खोलते तो कोई ना होता। अब तो ये रोज़ाना की कहानी हो गई थी। तीनों माँ बेटे बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे कि आखिर क्या करें। यही नहीं, उस नए चौकीदार ने बताया कि इस जगह पर एक दूसरा चौकीदार पूरी रात फिरता है और कराहता रहता है, भाई मैं यहाँ काम नहीं करूँगा, मैं तो छोड़कर जा रहा हूँ। ये कहकर वो चौकीदार भी काम छोड़ गया था। जवाद अब बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था और कई दिन हुए थे कि माहिन ने उस लड़के को भी ना देखा था। वो भी परेशान और अपसेट रहने लगी थी। आज तो उसने फैसला कर ही लिया था कि मैं ऊपर जाकर उस लड़के से लाजमी अपने दिल का हाल बयान कर दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। आज जवाद घर पर ही था। अम्मी, मैं यूनिवर्सिटी के लिए निकल रही हूँ। क्या हुआ, आज भाई दफ्तर नहीं जाएंगे? नहीं, आज जावेद की तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, इसलिए उसने ऑफ ली है। उसे ज़रूरी काम से आज दोपहर को बाहर भी जाना है। तुम यूनिवर्सिटी जाओ, शाम में मुलाकात होती है। माहिन थोड़ी घबरा गई थी और जवाद माहिन के चेहरे को बगौर देख रहा था। माहिन जैसे ही अपने कमरे से बाहर निकली, जवाद भी आहिस्ता आहिस्ता माहिन के पीछे था। वो बाहर जाकर देखना चाहता था कि माहिन कैसे जाती है, क्योंकि गेट पर तो चौकीदार था ही नहीं। ये गेट खोलकर कार निकालकर दरवाज़ा कैसे वापस बंद करेगी। वो इस नियत से जवाद माहिन के पीछे पीछे जाने लगा। माहिन नीचे नहीं बल्कि पीछे देखकर सीधे ऊपर जाने लगी थी। एक पल को तो जवाद ठिठका, लेकिन फिर उसके पीछे जाने लगा। माहिन बहुत तेजी से सीढ़ियां अबूर कर रही थी और जैसे ही 4th फ्लोर आया, उसने सीधा टर्न लिया और दरवाज़ा नंबर 350 के पास जाकर खड़ी हो गई, बजाने लगी। इतने में जवाद भी वहां पहुंच गया था। माहिन, यहाँ किससे मिलने आई हो? वो भाई, मैं असल में मेरी दोस्त रहती है यहाँ। कब से? वो कुछ ही दिन पहले यहाँ शिफ्ट हुए हैं। वो भी मेरे साथ यूनिवर्सिटी जाती है। अच्छा, तुमने कभी घर में तो इस चीज़ का जिक्र नहीं किया। भाई, वो असल में आप आजकल मुझसे इतना नाराज़ रहते हैं ना, इसलिए। माहिन बेपनाह परेशान हो गई थी कि वो अपने भाई को क्या जवाब दे। दोनों 5-10 मिनट गेट के बाहर खड़े रहे। जब किसी ने दरवाज़ा ना खोला तो जवाद कहने लगा, क्या हुआ, आज क्या सब घर में गायब हो गए हैं? हटो ज़रा मैं देखूं तो। ये कहकर जैसे ही जवाद ने दरवाजे का लॉक घुमाया, दरवाज़ा हल्की सी चिड़चिड़ाहट के साथ खुल गया। अंदर घुप अंधेरा था। जवाद ने पूरा दरवाज़ा खोला। अरे, कहाँ गई तुम्हारी दोस्त? माहिन, यहाँ तो कोई भी नहीं। जवाद बहुत गुस्से से माहिन को देख रहा था। वो भाई, यहीं तो सच सच बताओ, यहाँ क्यों आई थी? वरना तुम्हारी खैर नहीं है। भाई, मैं सच कह रही हूँ, मेरे साथ नीचे चलो। लेकिन भाई, यहाँ कल तक तो सब कुछ था, अचानक। हाँ बेटा, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो, मेरे साथ चलो। अंदर आओ ज़रा। एक एक कमरा तलाश किया। जवाद ने बाथरूम के दरवाजे तक खोल दिए थे। अरे लड़की, यहाँ तो कोई भी नहीं है, और जितनी इस घर में धूल मट्टी जमी है ना, मुझे तो नहीं लगता कि कल परसों तक इस घर में कोई था। वो माहिन का हाथ पकड़े बहुत तेजी से नीचे उतरने लगा था। अम्मी, ये देखिए आपकी लाडली बेटी खुफिया खुफिया दरवाज़ों को खोल खोल कर अंदर झांकती है। इसका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं रहा। माहिन घर में आते ही एक सदमे से बेहोश हो गई थी। जवाद बहुत परेशान हो गया था। अरे, मैं तो ऐसे ही कह रहा था, ये तो बेहोशी हो गई। वो उठाकर उसे बेडरूम में ले आया, उसके ऊपर पानी छिड़का तो वो होश में आई। तब माहिन ने अपनी माँ का हाथ पकड़ा और अपनी माँ को तमाम कहानी बताई। अम्मी, मैं झूठ नहीं कह रही, मैंने आपसे वो काली हुडी वाले लड़के का जिक्र किया था ना, उसने ही मुझे बताया था कि मैं वहाँ ऊपर रहता हूँ, और मैंने 1 से 2 दफ़ा खुद उसे ऊपर जाकर देखा है। मैं कभी उसके घर में नहीं गई, लेकिन आज मेरा जाने का इरादा था।
امی میں اندر ہی اندر اسے پسند کرنے لگی تھی. وہ دو ٹوک اپنی امی سے کہہ رہی تھی اور جاوید منہ میں انگلیاں دبائے غصے سے ماہین کی تمام باتیں سن رہا تھا. امی میں مان بھی لوں اس کی بات سچ ہے، لیکن آپ میرے ساتھ چلیں اور اس فلیٹ کا حلیہ دیکھیں. میں سمجھ نہیں پا رہی آخر یہ ہو کیا رہا ہے. اور رحمو بھی غائب ہو گیا ہے. تینوں ماں بیٹے اب بے پناہ پریشان ہو گئے تھے. امی مجھے یہ جگہ مناسب نہیں لگتی، ہم یہ گھر چھوڑ دیں گے. اور ہاں امی میں آپ کو بتانا بھول گیا کہ مجھے یہاں پر ویسے بھی کچھ خطرہ محسوس ہوتا ہے، اس لیے میں نے یہ گھر سیل آؤٹ کر دیا ہے اور کچھ ہی دنوں میں ہم یہاں سے چلے جائیں گے. اب ہم یہاں نہیں رہتے. اور ہاں امی آج میں گھر پر ہی ہوں، ہم خالہ کی طرف نکل جائیں گے. نہ جانے ماہین کیسی بہکی باتیں کر رہی ہے. اس سے پہلے کہ یہ مزید بہکے اور ہمارے لیے کوئی پریشانی کھڑی کر دے، میں یہ گھر خالی ہونے تک اب تم لوگوں کو یہاں نہیں رہنے دوں گا. ماہین بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی. اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ ان کو کیسے یقین دلائے. لیکن 3 دن تک وہ خالہ کے گھر میں رہے. وہ گھر اب سیل آؤٹ ہو چکا تھا، سامان بھی وہاں سے جا چکا تھا، لیکن جواد ماہین کو اس فلیٹ کے آخری دیدار کے لیے بھی نہیں لے کر گیا. اور ماہین بیچاری آج تک اسی سش و پنج کا شکار رہی کہ وہ لڑکا کون تھا.